can do that? Yes, sir. Okay, fine. So computer is an electronic machine which takes an input and produces an output. Barabar? Is this part clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this term which is electronic is one of the most important term. Okay, so in order to understand this electronic, you might have a subject electronic related कुछ subject था अब तक आपको in first year. No, sir. Did you? Yes, sir. What was the name of the subject? Can someone please tell me? Principle of electronics. Principle of electronics. उसके बाद did you have digital electronics था आपको? Logic designing, something of that sort. Was there any subject regarding that? Yeah, No, sir. sir. That was only principle of Logic design. electronics. Logic gate सिखाया तो था. Okay, हाँ, okay. लॉजिक गेट्स था. उसके अंदर था नंबर सिस्टम था 1001 बाइनरीज बाइनरी का सर Yes, sir. इसमें था, FOCS में था. हाँ, FOCS मतलब इसमें भी था, लॉजिक में भी था, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज. FOCS का फुल फॉर्म anybody can tell me what is FOCS? फंडामेंटल्स ऑफ Fundamentals कंप्यूटर of computer साइंस. science. Okay. Yeah, so the term electronic over here is that the machine generally terms the language of current, right? So या voltage. Okay, so उस फॉर्म में ही आपकी जो कंप्यूटर है वो चलेगा. So उसके अंदर there are generally computer has two levels, okay, because it uses digital electronics, it uses generally binary in nature. So आपके पास दो ही level possible है, either it can be 1 or it can be 0, right? Yes, sir. Yes, sir. So the higher level is generally referred as plus 5 volt and the lower level is generally referred as minus 5 volt. Okay. So ये दो वैल्यू के बीच में आपकी कंप्यूटर के जो भी चीज़ें हैं, कोई भी डेटा, कोई भी प्रोग्राम, इन दो वैल्यू के बीच में रहेगा. Okay. So basically it deals with the electric current or the voltage. That is why it generally is referred as electronic machine. And it takes an input and produces an output, so that is the functionality of a machine. So that is why a computer is nothing but it is an electronic machine. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So अगर मैं आपसे मोटे तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होंगे, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स दैट वी कैन हैव इन कंप्यूटर्स. अगर आपके सामने अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर के अंदर आपको क्या क्या नज़र आएगा? मॉनिटर, CPU, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके. मॉनिटर एंड CPU. CPU एक टर्म आया. CPU के अंदर जनरली व्हाट वी हैव? प्रोसेसिंग यूनिट. motherboard. Processor. Motherboard we do have, but उसके अंदर the most important component that we have on motherboard is the processor, right? यस Right? सर. Yes, sir. Everybody agrees. Any Yes, example sir. of processor? Any example of processor that you have heard of? Intel. AMD 80, Ryzen. Intel, 85, AMD. 88, 88. Yeah. So we have Yeah. AMD Ryzen. Ryzen में we have the 3 series 357, right? 3600X. यस सर. Yeah. एंड Similarly for इंटेल में भी. Intel we have i3, i5, i7. Yeah. यस सर. For Yes, sir. mobiles we have Apple का किसी को पता है? Which processor Apple does use? नो सर. iOS 15. iOS It is an operating system. It is an operating system. It is not a hardware. M1. Sir, Bionic. It Bionic is chip. Bionic chip. It is Bionic chip. It Bionic. is the current Apple, the modern, the latest Apple that we have, which is if you're using iPhone 11 or 12, iPhone 12, I guess it has A14 Bionic chip. So A14 Bionic chip को actually A14A का मतलब होता है ARM. It is ARM processor, and this ARM, A stand for advance, R stand for RISC, RISC, AMP stand for machine. And this RISC also has a full form, which is reduced instruction set of computers. So ये इस नाम का एक चिप है which is ARM14, and ARM का full form is Advanced RISC Machine and RISC का full form is Reduced Instruction Set of Computers. Okay, so ये एक basically एक ARM processor है. So यानी अगर आप कोई भी device ले लो, okay, if you take any device, it will have a processor into it. अगर वो एक computer है तो उसके अंदर एक processor होना compulsory है. Is that clear?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर आपके पास मोबाइल फोन है उसके अंदर प्रोसेसर होगा विच कैन बी स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, या अगर आपके पास एप्पल है तो A14 चिप हो सकता है, Xenos. एक्जीनोस हो सकता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके अंदर राइजन हो सकता है, उसके अंदर AMD A6 A5 जो भी है वो प्रोसेसर हो सकता है, इंटेल का प्रोसेसर हो सकता है। सो एनी कंप्यूटिंग डिवाइस दैट यू हैव, एनी कंप्यूटर दैट यू हैव, इट विल हैव अ प्रोसेसर इनटू इट। सो कैन वी इंक्लूड प्रोसेसर एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक of computer? Can we do Yes, that? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Processor के अलावा और क्या होता है? What are the other things that we have apart from processor? Storage and The Input RAM. RAM. devices. Yeah, so that is the storage, right? Yes, sir. Yes. RAM and ROM. So can we refer that as memory? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. we are going to refer that as memory. So yeah, so memory generally are multiple. There are different types of memory. We have something called as secondary memory. We have primary memory. Then we have something called as cache memory. Cache memory, there are Virtual different memory. types. That is not part of the hardware. That is part of the OS. Virtual memory is not actually present. It is something which is generated by your respective software. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. When you study the concept of operating system, in that case, you will understand the concept of virtual memory. So right now, So, yes. So nowadays many companies advertise saying that you get up to 13 GB of expandable RAM or something. So that is actually not the RAM, right? No, 13 GB of expandable RAM that you're trying to say. Yeah, because nowadays phones basically consist of 8 to 12 GB of RAM, but then they Yeah. advertise saying that you get up to 5 GB of extended RAM or something. So that is actually not there, right? It's just a virtual thing. The mobile phone that you're trying to say, it depends basically. It depends. If you want to extend on laptop, you can do that. Because basically there is a concept of address lines. Okay. This is like if you go into more detail when you open the architecture. In architecture we have a concept of address lines, data lines, and the control lines. So अगर आपके पास 16-bit का address line है, okay, so it is like, should I go into that detail? Do you want me to go into that detail? Is it okay? Can you digest right Yes. now? Yes, sir. Yeah. Okay. So Yeah. Yes, sir. yeah. Okay. Fine. So if you have like 16, let's say if you have just one address line का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक वायर है और उस वायर पे अगर आप 1 डाल सकते हो या 0 डाल सकते हो, तो इस एड्रेस से आप कितने मेमोरी लोकेशन को आप एक्सेस कर पाओगे? हाउ मेनी मेमोरी लोकेशन यू कैन एक्सेस? सो इट इज 2 लोकेशन. एक का एड्रेस 1 होगा और दूसरे का एड्रेस 0 होगा. इज दैट क्लियर? सो इफ यू हैव वन लाइन, Yes, sir. you can access 2 location. If you have 2 lines, 2 address line, you can access how many locations? It is 4 locations. So क्या होगा? आपके पास 1, 2, 3, 4 लोकेशन आप डेटा इसके अंदर डाल सकते हो. पहले लोकेशन का एड्रेस होगा 00, दूसरे लोकेशन का एड्रेस होगा 01, उसके बाद वाले लोकेशन का एड्रेस होगा 10 एंड लास्ट वाले लोकेशन का एड्रेस होगा 11. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, इसको एक्सेस करने के लिए आपको कितना वायर लग रहा है? आपको 2 वायर लग रहा है. यू आर रिक्वायरिंग 2 वायर्स. ओके, एक वायर ये हो गया और दूसरा एक अलग कलर ले लेता हूँ मैं, और दूसरे वायर आप कुछ ये वाला यूज कर सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो? 4 लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो. इज दैट क्लियर? Yes, इज sir. दैट क्लियर? अगर आपके पास 3 वायर है, इफ यू हैव 3 वायर्स, in that case you can access how many locations? 8. 8. 8 locations. Okay, model processor that we are working right now, it is generally of 32-bit. Okay, so इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा? 2:32 wires होंगे. Okay, what is 2:32? Can someone tell me? It is quite pretty big, but हम general rule से जाते हैं. So 2:1 is what? 2. 2:2 is what? 4. 2:3 is what? 8. 2:4 is what? 16. 2:5 Sir? is what? Yes. Sir, we do have 64 bits also, no? हाँ, मैं बताता हूँ, अभी आगे बताता हूँ. 2:5 is what? 32. 32. 2:6 is 64. 2:7 is 128. 2:8 is 256. 256.
2 raised to 9 is 512. 500 2 raised to 10 is 1024. 1024. 1024 in computer we call it as 1K 1K. because computer के अंदर 1000 नहीं होता. The nearest to 1000 is 1024, right? Yes, sir. Yes, So sir. 1 That is GB why- is also 1024 Yeah. MB. Yeah. So it is 1024. Clear है यहाँ तक? 1024 is nothing but 1K. 2 raised to 10 का मतलब क्या होगा? Sorry, 2 raised to 20 क्या होगा? Yeah, sorry, 2 raised to 20 नहीं, 2 raised to 11. 2 raised to 11 क्या होगा? It is 2 raised to 1, 2 raised to 10. Yes. बराबर Yes, ऐसे कर sir. सकता हूँ मैं. 2 raised to 10 is nothing but Yes. 1K and 2 raised to 1 is 2. So it is 2K. Can I write down as 2K? Yes, sir. Yes. Yes, sir. What is Yes, 2 raised sir. to 12? What is 2 raised to 12? 2 raised to 2 into 2 raised to 10. Yes. Is it equal to 4K? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. What is Yes, 2 sir. raised to 13? 8K. 2Q into. Yes. Okay. बराबर. Then can you tell me what is Yes, 2 sir. raised to 20? What is 2 raised to 20? It is 2 raised to 10 into 2 raised to 10. So 10. 1K, 4K. 1K into 1K is what? 2. 1 mega or 1 million. 1 mega Yes. or 1 million, right? Well, Yes, sir. Yeah. mm, 2 raised to 21 is what? It is 2 raised to 20 into 2 raised to 1, which 2M. is 2 million or 2 mega. well, What Yes. is 2 raised to 30? What is 2 raised to 30? It is 2 raised to 10 into 2 raised to 10 into 2 raised to 10. okay. So it is 1K Giga. into 1K into 1K. So 1K into 1K is 1M 1G. into 1K, which is equal to 1 giga. It is equal to 1 giga. You have address line of 2 raised to 32. So what is 2 raised to 32? Can I write down 2 raised to 2 into 2 raised to 30? 4G. Yes, Yes, sir. Yes. 4G. 4 giga. 4G. The universal rule is note down somewhere in your book. First of all, अगर मैं एक suggestion अगर आपको देना चाहूँ, online education ना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती until and unless you have a book with you. Okay, so it is advisable that you maintain a book. Okay, it is advisable so that you keep a record of it and we can have a proper track कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे. Okay, so somewhere in the book, please write down and highlight it. It is very important. Write down as note on every location. On every location, you can store exactly. किसी का mic चालू है, kindly mute it. On every location, you can store exactly 1 byte of data. What is 1 byte of data? 1 byte of data मतलब 1 byte is how much? It is 8 या तो bit. It is 8 bit. Exactly. So हर लोकेशन Yes. पे आप 1 बाइट का डेटा ही स्टोर कर सकते हो. यानी अगर मैं एक लोकेशन बनाता हूँ, कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी की बात करता हूँ, तो एक लोकेशन जो है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप 8 बिट का डेटा ही स्टोर कर सकते हो. आई कैन स्टोर 1001 0101. सो मैं इतना ही डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ हर लोकेशन में. एग्जैक्टली. Yes, sir. तो अगर मेरा 32 बिट का प्रोसेसर है, इफ इट इज अ 32 बिट प्रोसेसर, so I can have 2 raised to 32 such locations. 2 raised to 32 मेमोरी लोकेशंस मेरे पास हो सकती है और हर लोकेशन पे मैं कितना डेटा स्टोर कर सकता हूँ, 1 बाइट. राइट. Yes. Yes, Yes, sir. Yes. So what is Yes, 2 sir. raised to Sir, repeat. what is 2 raised to, yeah. So I have got 32. Yeah, I'll repeat. Okay, please listen carefully. The processor is a 32 bit processor. If it is a 32 bit processor, that means I can have 2 raised to 32 locations. 2 raised to 32 location is 4 giga, and on each location I can store 1 byte of data. Is that clear? Yes, sir. So that means the total RAM that I can connect to a 32 bit processor, it cannot exceed 4 GB. Is that clear?
Yes, sir. Got it. Yes, sir. सो अगर आपके पास 32 बिट का प्रोसेसर है, अगर 32 बिट का प्रोसेसर है, आप 4 GB से ज़्यादा रैम लगा ही नहीं सकते. ओके, Okay, sir. Yes, sir. सो दैट इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट. सो अगर आप 64 बिट के प्रोसेसर की बात कर रहे हो तो आप लगा लो हिसाब कितना GB आप रैम सपोर्ट कर सकते हैं. The 16. Okay. No, it will be more than that. It will be more than Okay, that. So Yeah, you can calculate. just for making a hypothetical situation, what if we do connect a RAM above 4 GB? Would it explode or would it just not work? Because there could be some In this possibility of case, that, right? you can connect as many RAM as possible. आप zettabyte में भी connect कर सकते हो. But the problem is जैसे अगर मैंने एक मान लो अगर मेरा एक पोस्ट ऑफिस है और एक पोस्ट ऑफिस के अंदर एक वर्कर है, वो वर्कर की कैपेसिटी कि वो 100 लोकेशन पे ही जा सकता है. अब मेरी पोस्ट ऑफिस अगर इंडिया के बाहर भी कवर कर ले तो भी पॉसिबल नहीं है ना, वो 100 ही लोकेशन जा सकता है. तो मैं पागल होऊंगा कि अगर मैं उतना खर्चा कर रहा हूँ, बिकॉज I can exceed the limit, but there is a limitation of every system. Are you guys getting it? Yes, sir. Sir, वही मेरा question था क्योंकि nowadays we hear a lot about the phones being blasted or something. So is that because of the RAM thing that heats No, up no, the... no, 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 no. It won't blast. It won't blast. The reason for blasting is something else. It is not related to the RAM. The RAM is basically अगर मेरे पास मतलब अगर मैं मान लो मेरे पास यूनिक लोकेशन यानी हर लोकेशन मेरे पास 4G का लोकेशन है और मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 16 GB का, तो 16 GB में से सिर्फ 4G को ही मैं 4G यानी रिमेनिंग कितना हो गया 4 GB लोकेशंस को मैं अनयूज कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यूज ही नहीं कर सकता, उनका लोकेशन मैं दे ही नहीं पाऊंगा. सो दो वो रहेगा बट उसके अंदर मैं डेटा स्टोर कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं उसके ऊपर उस पर पॉइंट ही नहीं कर सकता. आर यू गाइस गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज आई हैव अ लिमिटेशन. अगर ये एक मेरी मेमोरी है और मेरा जो प्रोसेसर है उसको वो क्या कर सकता है, बस यहाँ से यहाँ तक के लोकेशन को एक्सेस कर सकता है, उसकी इतनी ही कैपेसिटी है. अब आप नीचे मेमोरी जितना बढ़ाना हो बढ़ा लो, लेकिन वो फिर भी इतना ही डेटा को एक्सेस कर पाएगा. सो देर इज नो यूज ऑफ एक्सटेंडिंग द मेमोरी. उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा और वो आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. सो अगर आप देखा जाए तो रैम का प्राइस इज नॉट चीपर, it is pretty much high. Yeah? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that is why there is a concept of two types of memory. One is called as primary memory, okay, and the other one is, what is the obvious other one? It is Secondary. secondary memory. There are two concepts of memory. Primary memory जो है वो RAM को बोला जाता है जनरली, और secondary memory जो है वो जनरली किसको बोला जाता है, हार्ड डिस्क को. Okay, so out of this, which will be costlier? Can someone tell me? RAM. RAM. Obviously, RAM आपका महंगा, हार्ड डिस्क RAM. या हार्ड डिस्क से महंगा होगा. So अगर मैं जितना चाहूँ उतना अगर मैं RAM कनेक्ट कर लेता तो मुझे हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. मान लो अगर मेरे सिस्टम में अगर 1 TB का मैंने RAM लगा दिया, तो क्या मुझे हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत पड़ेगी? No, sir. मेरा काम तो हो जाएगा. No, sir. बट क्या 1 TB RAM लगाना पॉसिबल है? नहीं, sir. No, sir. ये अगर No, sir. No, sir. मान लो अगर ये पॉसिबल भी है, लेकिन इसके लिए जो कंप्यूटर अगर जो बनाओगे आप, वो कंप्यूटर अगर आपको 10 लाख का पड़ेगा तो आप खर्चा करोगे क्या इतना? डू यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ यूजिंग 10 lakh rupees, investing 10 lakh rupees for a computer? No, sir. No, sir. Instead of that, I'll just substitute to a hard drive Yeah. rather. So instead of this 1 TB RAM, आप क्या करोगे? आपको अगर 1 TB का ही चाहिए, आप 4 GB का RAM लगा लो और 1 TB का हार्ड डिस्क ले लो आप, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस ओवरऑल जो 10 लाख का कॉस्ट था वो रिड्यूस होकर के आ जाएगा कितने में? 25,000 में. So this is the advantage that you get if you have two different types of memory. One is primary memory and the other is secondary memory. Is that clear? Sir, Yes, talking I guess. about the memory part, Yeah. after a certain amount of time, after we buy some electronic device, for example, say a mobile phone or even a laptop, after a Yeah. few years, it starts to get laggy or gets Yeah. a lot Yeah. slower than the present day. Like now I have a phone of 8 GB RAM. So I know that after a few years, it would somehow get a lot slower than present day, right? So why does that happen? Is it something related to the memory part, the primary or the secondary, or is it a You can say different that. thing?
No, you can say that because it uses the electronic components and it generally uses the semiconductor devices. That semiconductor devices on charging and discharging sometimes there is a issue which is being created and उसके अंदर dummy values आ जाती है and उस dummy value को दोबारा बार-बार replace करने से the speed of the system gets lower. So basically, the extraction that it takes, the phone or the PC that takes from the Yeah. RAM or the memory, that is why our over the time our phones and laptops start getting slower and slower. Yes, actually, but there is more detail into it. अभी कैसा है ना, अभी सब इसमें इधर ही चले जाएंगे तो फिर आगे का टॉपिक सब रह जाएगा. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ SSD आल्सो, आपने सुना होगा, सॉलिड स्टेट डिस्क. Yes, sir. या सो ये कंसेप्ट भी है जिससे कि आपके सिस्टम को और एडवांटेज मिला ओवर टू HDD. फिर रैम में भी देयर आर मल्टीपल टाइप्स व्हिच इज SRAM, DRAM. फिर ROM में देयर आर डिफरेंट टाइप्स. सो इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक एक्चुअली. अभी सब सॉल्व करने बैठेंगे ना तो देयर इज नो लिंकेज विच विल बी देयर. I know this subject is very much curious about. We'll go into proper channel, okay? Is that clear? Yes. तो sir, अगर sure, sir. जो भी सवाल है आप रखो Yes, sir. अभी. जैसे जैसे हम सिलेबस ओपन करेंगे उस हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे. बिकॉज ये जो मैंने अभी ये नंबर सिस्टम मैंने बताया ना आपको, दिस वन, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, ये मैंने अभी बता दिया लेकिन ये आगे वापस आएगा, वापस फिर उतना ही टाइम जाएगा. और वो कितने लोग को अभी, कुछ लोगों को अभी समझ में आया होगा लेकिन कुछ लोगों को वो समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा. दैट इज ऑल्सो आई एम अवेयर ऑफ. ओके, सो विल गो धीरे धीरे जाते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर, देन वी विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर. Is that clear? Will that be okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Sir, So till now, yeah. sir, 1 TB RAM is possible in 64-bit system? I think it is possible. कितना आया? 2:60 is how much? 2:60 is how much? It is more than 1 TB. You can have more close to zettabyte as well. आप connect कर सकते हो RAM. Okay. But again the problem is with increasing of RAM, there is no utilization. मतलब RAM अभी मान लो अगर आप which is the biggest game right now? Biggest game. Most RAM consuming, I guess, Cyberpunk था अभी. सबसे बड़ा गेम कौन सा है इस वक्त? मेरे ख्याल से RDR2 है, Red Dead Redemption 2. हाँ, GTA 5, RDR2, Cyberpunk यही चल रहा है. So RDR2 का space is close to I think 128 GB, right? Yes, sir. So अगर आपको RAM डालना है, अगर आप मान लो 200 GB का RAM डाल देते हो, राइट? सो 200 GB में क्या करोगे आप? 128 GB पूरा का पूरा गेम डाल दोगे, राइट? उसके अलावा बाकी एप्लीकेशंस आप डाल सकते हो. लेकिन क्या ये पूरा का पूरा 128 GB एक ही टाइम पे रन होगा या उसका छोटे छोटे पार्ट्स आप गेम के रन करोगे? You run almost a small part of the game, right? So there is a concept, something called as paging. There is a concept called as segmentation. So जो कि OS के अंदर भी यूज होता है, but it also plays an important role during hardware as well. So हम क्या करते हैं, जो RAM है आपका, उस RAM को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. Okay, and that is something which is called as paging. Okay, I'll give you an example instead of going into that detail. Avatar movie आपने बीच में आया था. Heard about Avatar movie? Yes, sir. The best quality of Avatar was MKV. अगर आप Blu-ray या MKV ले लो, so उसका space was close to 16 GB. बराबर? Yes, sir. बराबर? अगर आपके पास 4 GB का RAM है, let's say if you have a 4 GB RAM, okay, और आपके पास एक हार्ड डिस्क है और उस हार्ड डिस्क का कैपेसिटी है 256 GB, मान लो. इस हार्ड डिस्क के आप एवेटार मूवी कहाँ डालोगे? हार्ड डिस्क में डालोगे या रैम में डालोगे? वेयर इज योर Hard disk. इट इज देयर Hard disk. इन हार्ड डिस्क. सो यहाँ पे आपका एवेटार है, योर एवेटार मूवी इज ओवर हियर. व्हेन यू क्लिक ऑन एवेटार, 16 GB के फाइल पे आप क्लिक करोगे तो क्या वो 16 GB पूरा 4 GB में आ पाएगा क्या? विल इट कम इनटू No, sir. 4 GB RAM? No, only a part of that movie will come, right? कुछ एक पार्ट आएगा, right? And that part is 2 KB. एक पेज का साइज 2 KB होता है. तो ये 2 KB का जो पार्ट है एवेटार मूवी का, वो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? रैम के अंदर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके. Okay, सो sir. जब आप मूवी जब आप प्ले करते हो, जब भी आपने देखा होगा, जब मूवी पे डबल क्लिक करते हो, देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल टाइम विच टेक्स, उसके बाद मूवी प्ले होती है, राइट? Yes, sir. Yes, sir.
Why it takes that small time? Because the movie is getting transferred from which memory to which memory? Secondary From to to Primary primary. to secondary to primary. Secondary to primary. Very good. Okay, so that is the reason why it takes a small pause. उसके बाद मूवी कंटिन्यू चलती है। मूवी कंटिन्यू चलती है क्यों? 2 KB का डेटा ऑटोमेटिकली आपका इसके अंदर आ चुका है। उसके बाद रैम क्या करेगा? अगला 2 KB बार बार लेते चले जाएगा, लेते चले जाएगा, लेते चले जाएगा। इसकी वजह से आपकी मूवी स्मूथ रहती है। लेकिन अगर अचानक से अगर आप फास्ट फॉरवर्ड कर देते हो आगे, तो मूवी थोड़ी देर के लिए फिर से अटकती है। Sir, picture quality will also change. नो, पिक्चर क्वालिटी तो छोड़ दो, बट क्या मूवी अटकती है क्या अचानक से अगर आप फास्ट फॉरवर्ड कर देते हो कोई भी मूवी को? Yes, sir. Yes, sir. Sir, it It starts sometimes क्या doubling. lags, कभी कभार साउंड थोड़ा- या Yes, sir. मूवी या ऐसा कुछ। या थोड़ी देर के लिए एक पॉज होता है वापस से, कुछ मिली सेकेंड में, ज्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा मिली सेकेंड का एक पॉज होएगा। Why is that pause? Yes, because processor is searching that movie in RAM, बट वो वाला सीन अभी तक रैम में आया नहीं था। तो वो क्या करेगा? रैम वापस बोलेगा हार्ड डिस्क को कि ये वाला पार्ट मुझको उठा के दे। तो वो वाला पार्ट जो वापस ट्रांसफर होगा रैम के अंदर, इट विल टेक स्मॉल टाइम। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, So that is how it works. So अगर आप चाहो तो आप रैम बहुत बड़ा लगा सकते हो, लेकिन विथ रैम कम्स द प्राइस। सो अगर आप 200 GB का रैम लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सिस्टम डज सपोर्ट, बट उतना यूज करके फायदा क्या? जैसे अगर आज मैं PS5 यूज कर रहा हूँ, PS5 का करंट मार्केट वैल्यू इज 50,000। इफ आई एम यूजिंग अ PlayStation 5 एंड उसके अंदर SSD है जो कि ऑलमोस्ट फास्टर है, इट इज क्लोज टू स्पीड ऑफ रैम ओनली। सो अगर मैं रैम का साइज बढ़ा दूंगा 16 GB से 32 GB कर देता हूँ, उससे बेटरमेंट ही होगा, उससे मेरा सिस्टम और फास्ट होगा, लेकिन एक लिमिट तक ही फास्ट होगा। उसके बाद वो एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरा इंक्रीज होते चले जाएगा। सो आई नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अ परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। बराबर ना? sir. हर एक Yes. की बस की बात है क्या एलियनवेयर का लैपटॉप खरीदने की? No, sir. No, sir. No. So there नहीं सर, are नहीं some people who require budgeting laptop or require budget desktop. So for them, they need to compromise on their RAM. Okay, so you need to have a proper balance. इसलिए मैं बोला अगर आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पता है तो आप सही असेसमेंट कर पाओगे आप जब भी हार्डवेयर लेने जाओगे कि आपको 8 GB का रैम सफिशिएंट है, 16 GB का रैम सफिशिएंट है या 4 GB का रैम सफिशिएंट है। So if anybody is planning to buy a laptop, it is advisable go with laptop which has more than 8 GB RAM. At least 8 GB RAM तो होना चाहिए, because in future you will be using technology which is generally Hadoop or DevOps. तो उसके अंदर आपको मशीन लर्निंग या उसके अंदर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होंगे वो आपके 4 GB RAM के अंदर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Is that clear? Hello, sir. Yes, sir. yes. Sir, I have one doubt. Mainly in AMD processors, we should took some amount of RAM for the processing, like in AMD processors. So, what is the main reason behind this that they take some amount of RAM for themselves to work in the PC or laptop? Yeah, so there is a concept of rigidness. Okay, again the topic is it is जो आप पूछ रहे हो ना ये सब सब्जेक्ट में है, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन आप बहुत जल्दी पूछ रहे हो। पहले लेक्चर में ये सब नहीं पूछते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं। ओके, सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रिजिडनेस। ओके, आप सबने सुना होगा एप्पल जो है वो ज़्यादा फास्टर होगा कंपेयर टू विंडोज, राइट? Yes, sir. यानी HP का लैपटॉप और हाँ, एप्पल का लैपटॉप में एप्पल फास्टर होगा। क्यों फास्टर होता है एप्पल? बिकॉज उसके अंदर जो आर्किटेक्चर है, उसके अंदर जो रजिस्टर्स हैं वो ज़्यादा है। देयर इज अ लॉट ऑफ रजिस्टर्स दैट दे हैव। ओके, उसका मतलब जो उसके अंदर जो डेटा है वो प्रोसेसर के पास ही रहता है, तो उसको आपको रैम के पास या उसको हार्ड डिस्क के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका ज़्यादातर डेटा एप्पल के खुद के प्रोसेसर के पास होता है। So there is a concept of something called as register and cache memory. So that generally in Apple is pretty much more. It uses more number of registers because it is based on something which is called as RISC processor. Again, आपको याद होगा ARM7 बात कर रहा था मैं, ARM प्रोसेसर की बात कर रहा था। उसके अंदर जो R है उसका मतलब है RISC का मतलब है reduced instruction set computers. reduced instruction set का मतलब उसके अंदर instruction set कम रहेगा, इसका मतलब number of registers will be larger. So number of registers will be very much. जहाँ पे भी number of registers ज़्यादा होगा वहाँ पे speed ज़्यादा होगी. So there are two different types of computer. One is called as CISC processor, other is called as a RISC processor. ये क्या है? ये बहुत डिटेलिंग है यार, ये अभी आप बहुत ज़्यादा जल्दी डिमांड कर रहे हो जिसका अभी आपका कैपेसिटी नहीं है।
कैसा है गेम में आप डायरेक्टली आप 50 लेवल पे पहुंच गए हो, पहले लेवल 1 तो स्टार्ट होने दो, समझ में आया? Yes, sir. ओके सो थोड़ा आराम से विल गो अहेड, विल लर्न इट। ओके सो इट इज़ नॉट लाइक हम लोग पार्ट स्किप करेंगे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। आप लोगों से एटलीस्ट इतना है कि आप लोग इतना पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप इंटरेस्ट तो आपका आ रहा है सब्जेक्ट में। ओके सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू डेवलप द इंटरेस्ट इनटू दिस सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को समझ पाओगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस, एक और डाउट आ गया। हाँ बोलो। नहीं डाउट नहीं सर। सर as you told that when we watch a movie the parts are moved from secondary to primary memory या यस location. या तो सर प्राइमरी मेमोरी लोकेशन जो होता है वो प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्या? प्राइमरी मेमोरी जो है वो प्रोसेसर से कनेक्टेड रहता है, बराबर। तो तो सर जो मैंने हाँ बोलो बोलो यस बोलो सर। बोलो। तो नहीं सर तो जो प्राइमरी की जगह अगर सेकेंडरी भी अगर प्रोसेसर से कनेक्ट कर दिया तो? नहीं कर सकते वैसा, क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, जो आपका हार्ड डिस्क होता है। ओके कंप्यूटर जब आप चालू करते हो या लैपटॉप जब चालू करते हो, जब भी आप चालू करते हो तो देयर इज अ बजिंग साउंड व्हिच कम्स, राइट? करके साउंड आता है। यस सर। व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? क्यों आता है वो साउंड? रैम 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 नहीं यार, हर चीज रैम के ऊपर मत फैन डालो। स्टार्ट होता है सर। हाँ तो देयर इज हार्ड डिस्क के अंदर देयर इज अ मोटर। ओके बिकॉज हार्ड डिस्क जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस। ओके हार्ड डिस्क जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है। हार्ड डिस्क के अंदर एक मोटर होता है जो कि जनरल, अगर एक हार्ड डिस्क की बात करूं तो वो 7200 आरपीएम पे रोटेशन होता है, वो मोटर उतनी स्पीड में चलता है। आरपीएम स्टैंड्स फॉर रोटेशन पर मिनट। इज दैट क्लियर? आर यू गाइस गेटिंग इट? Yes, sir. Sir, Yeah. why So does it's a hard drive require Yeah, rotation? I'm telling it. Okay, so ये आपकी एक हार्ड डिस्क जो है एक डिस्क की तरह होती है और इस डिस्क को आपको रोटेट करना पड़ता है। ओके और उस रोटेशन पे वो क्यों, आपका जो डेटा है वो उसको आपको फेच करना है या डेटा आपको उस डिस्क पे डालना है, सो उसके लिए आपको उस डिस्क को रोटेट करना पड़ेगा। उसको डिस्क को रोटेट करने के लिए बीच में एक मोटर होता है जो कि 7200 आरपीएम पे चलता है। ओके सो उस वजह से 7200 आरपीएम जो है वो सफिशिएंट स्पीड नहीं है प्रोसेसर के साथ काम करने के लिए। दैट इज वाई वी हैव इंटरमीडिएट रैम। रैम जो है वो हार्ड डिस्क की तरह नहीं होता, वो सेमीकंडक्टर डिवाइस पे वर्क करता है, वो उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है कंपेयर टू हार्ड डिस्क। इज दैट क्लियर? Yes sir. या सो जस्ट बिकॉज इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस, कोई भी मोटर जो है उसकी एक लिमिट आएगी। वो एक आयन से फास्ट नहीं हो सकता, एक चार्ज से फास्ट नहीं हो सकता। द स्पीड ऑफ चार्जिंग इज प्रीटी मच हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज के बीच में जब आप ट्रांसफर करते हो अपने चार्ज को, तो उसकी स्पीड और एक रोटेशन की यानी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की और एक मैकेनिकल मशीन में स्पीड में बहुत ज़्यादा वैरी होता है। और हार्ड डिस्क जो है वो प्योर मैकेनिकल मशीन है, इसके लिए हमने हार्ड डिस्क को अब रिप्लेस कर दिया विद एसएसडीज। जो रीजन है फॉर रिप्लेसिंग हार्ड डिस्क विद एसएसडी इज द रीजन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पीड। सो 7200 आरपीएम का मतलब क्या है, जो रीड एंड राइट स्पीड मिलेगा मैक्सिमम वो आपको 10 एमबीपीएस का मिलेगा इन हार्ड डिस्क। वेयर इन एसएसडी अगर आप एसएसडी में जाओगे इसमें आपको स्पीड जो है वो क्लोज टू 40-45 एमबीपीएस की स्पीड आपको मिलेगा। सो प्रोसेसर के करीब कौन सी मेमोरी होनी चाहिए, रैम होनी चाहिए या हार्ड डिस्क होनी चाहिए, जिससे स्पीड ज़्यादा होगी ना? RAM. Yes. रैम होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कम स्पीड वाला डाल दिया, मान लो अगर मैंने जिसकी स्पीड कम है वो मेमोरी मैंने यहाँ पे डाल दिया और जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसकी मेमोरी मैंने यहाँ पे डाल दी, तो आप कितना भी डेटा ले लो वो स्पीड जो प्रोसेसर एक्सेस कर पाएगा उसकी नेचुरली वो स्पीड कम ही होगी प्रोसेसर की। प्रोसेसर आप कितना भी फास्ट लगा लो, आप 7nm का प्रोसेसर लगा लो या आप 888 स्नैपड्रैगन लगा लो, कोई भी लगा लो आप, अगर आप हार्ड डिस्क यहाँ पे बीच में लगा देते हो प्रोसेसर से, तो वो हार्ड डिस्क से जो डेटा को रीड करने की या राइट करने की जो स्पीड है वो अगर आपको 10 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है तो आप प्रोसेसर कितना भी फास्ट लगा लो, रीड और राइट करने में आपका उधर ही स्लो हो जाएगा सिस्टम। आर यू गाइस गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. So that is why we Yes, need to sir. have और RAM. ये- That yes. Any doubt? सर अब जैसे कोई मशीन आइडियल मशीन नहीं होता है तो ये 10 mbps में भी कुछ लॉस आता होगा ना? आइडियल मशीन में पैकेट मतलब लॉस। समझा नहीं। सर जैसे
जैसे अभी इसका 7200 आरपीएम में 10 mbps स्पीड है, रीडिंग हाँ एंड राइटिंग स्पीड। जी जी। तो इसमें से 10 mbps में कुछ लॉस आता ही होगा ना? नहीं ना, दैट इज व्हाई देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज मेमोरी सेगमेंटेशन। ये मॉड्यूल नंबर 4th का पार्ट है, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, रैम को या मेमोरी के अंदर जो आपका एवेटार मूवी था, एवेटार मूवी को आपने क्या किया, छोटे 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 पेजेस में आपने डिवाइड कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, रैम के अंदर ये पेज को ट्रांसफर कर रहे हो, और ऑटोमेटिकली रैम की जिम्मेदारी होगी कि हर टाइम ये 2 KB का पेज इसके अंदर लोड करते चले जाए। सो अगर ये ऑटोमेटिकली हो रहा है पहले ही, जो आपके प्रोसेसर को स्पीड जो डेटा चाहिए, और ऑटोमेटिकली आप 2 KB का डेटा यहाँ से लेते जा रहे हो, तो जो डेटा प्रोसेसर को चाहिए वो रैम उसको उससे ज़्यादा स्पीड में ला के दे रहा है। ओके सर। थोड़ा बाउंसर गया ना रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आया। नहीं कैसे सर, कैसे है ना, ये टॉपिक थोड़ा ना आगे का टॉपिक है, अभी नहीं समझ में आएगा ये सब चीज़ें। ओके सर। ओके, थोड़ा टाइम लेते हैं और सर ये समझ में आएगा। एक हाँ, लास्ट क्वेश्चन सर, जो रैम होता है सर, वो रैम सिस्टम के लिए रिजर्व क्यों होता है थोड़ा सा? जैसे 4 में से यूजेबल सिर्फ 3.6 ऐसा ही कुछ होता है। या सो जो रैम है ना, रैम के अंदर देयर आर 2 डिफरेंट पार्ट, वन इज कॉल्ड एज रॉम एंड अदर इज कॉल्ड एज रैम। सो ये जो रैम होता है, रैम इज क्लोज टू, यू कैन से इट इज 95 to 98% रैम के लिए यूज होता है, और बाकी जो 2 to 3% है या 2 to 5% जो है वो आपका रोम में यूज होता है। रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब ऐसा प्रोग्राम, इसके अंदर प्रोग्राम स्टोर होता है, और ऐसा प्रोग्राम आप स्टोर करते हो जिसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्रोग्राम है आपके यहाँ जिसको आप कभी चेंज नहीं करते? ऑपरेटिंग सिस्टम सर। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम आप चेंज कर सकते हो। मेरे को आज पसंद नहीं आया विंडोज में उबंटू डाल दूंगा, आई कैन चेंज दी ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसी में तो होगा सर, लेकिन मोबाइल में पॉसिबल नहीं है ना? मोबाइल में भी आप रूट कर सकते हो, यू कैन चेंज दैट। आप एंड्रॉइड का नया वर्जन आप डाल सकते हो। एंड्रॉइड का नया वर्जन हो सकता है सर, लेकिन का जो फोन का यूआई होता है, नहीं वो कर सकते हो आप, इट इज नॉट दैट इशू। द ओनली थिंग दैट रिमेन अनचेंज इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज बायोस। सो बायोस एक प्रोग्राम है जो UI आपको, तो मतलब UI तो we can simply just nowadays तो we get apps on the Play Store. So UI को तो खाली एक launcher डाल दिया and the UI changes completely बराबर in every part of the phone. So yeah, यूआई का इशू नहीं है। आप ओएस आप फिर भी चेंज कर सकते हो। अभी क्या है कि हमारे पास 2 ही ओएस है इस वक्त मार्केट के अंदर, और दोनों पेड ओएस है। एक आपका एंड्रॉयड है और दूसरा आपका आईओएस है। सो इसके लिए आपके पास कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं लैपटॉप की या कंप्यूटर की बात कर लूँ, क्या मैं लैपटॉप के अंदर मैक ओएस डाल सकता हूँ? कोई भी लैपटॉप के अंदर आई कैन डू दैट। क्या मैं लैपटॉप के अंदर उबंटू डाल सकता हूँ? क्या मैं रेड हैट डाल सकता हूँ? क्या मैं सोलारिस डाल सकता हूँ? क्या मैं लिनक्स डाल सकता हूँ? मैं डाल सकता हूँ ना, कोई भी ओएस डाल सकता हूँ। सो But sir, मतलब ओएस जो है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, ओएस कहीं और स्टोर नहीं होता है। ओएस भी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कभी चेंज नहीं होता। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ओवन सबने देखा होगा, सबके घर में ओवन होगा मेरे ख्याल से, हार्डली सबके पास होगा ओवन। यस सर। ओवन, यस सर। ओवन के अंदर जब आप कुक करते हो, ओवन के अंदर कुक करते हो, खाना पकाते हो, तो जो भी एक, जैसे मान लो मुझे केक बनाना है, सो देयर इज अ केक का बटन वहाँ पे जहाँ पे आप प्रेस करते हो तो वो प्री हीट कर लेगा 180 डिग्री पे। यस yes sir. Yes, sir. तो वो क्या, उस बटन के जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, उसको बदलना चाहते हो? Till the time I'm making the cake, it should be constant. इट शुड बी कांस्टेंट ना। केक तो 180 डिग्री पे ही बनेगा, ऐसा तो नहीं ना कि आप 50 डिग्री उसका कर सकते हो, फिर केक खराब हो जाएगा आपका। इट शुड रिमेन कांस्टेंट, राइट? Yes, Yes sir. sir. या सो जो प्रोग्राम जिसको आपको चेंज करना ही नहीं है उसको आपको रॉम में डालना पड़ेगा, और जिस प्रोग्राम के अंदर पॉसिबिलिटी की चेंज हो सकता है वो रैम में डालना पड़ेगा। ओके? Yes, sir. यस सर। Yes sir. यस सर। या दूसरा एक और तरीका बता देता हूँ। स्विच ऑफ करने के बाद, जब पावर ऑफ करते हो ना, पावर ऑफ करने के बाद पावर ऑन करने में अगर प्रोग्राम में कुछ भी चेंज नहीं चाहते हो आप, तो वो रॉम में डालना पड़ेगा। और स्विच ऑफ करने के बाद अगर वो पुराने वापस स्टेट में चले जाए, पुराना सारा डेटा वो भूल जाए,
तो उसको आपको रैम में डालना पड़ेगा। सो रोम के अंदर आप वही प्रोग्राम डालते हो कि हर बार स्विच ऑन होने के बाद, स्विच ऑफ होने के बाद जब वापस सिस्टम स्टार्ट होगा वो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम को आपको डालना पड़ेगा और वो लाइफ लॉन्ग वैसे ही रन होना चाहिए। सो दैट इज समथिंग विच इज डेडिकेटेड फॉर रोम। सो इसके लिए रैम जो आप बोल रहे हो, पूरी तरह से रैम को क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि कुछ पार्ट रिजर्व करना पड़ता है कुछ बेसिक प्रोग्राम को उसके अंदर डालने के लिए। जैसे अगर आप टीवी चालू कर रहे हो तो टीवी हमेशा पहले एंड्रॉइड टीवी से ही स्टार्ट क्यों होता है? बिकॉज इट इज मेड टू डू दैट। क्योंकि आप स्टार्ट ही अगर वहां से नहीं होगा तो फिर वो कहां से स्टार्ट होगा? सो एक एंट्री पॉइंट आपको देना पड़ेगा जो हर टाइम जब भी आप टीवी चालू करोगे तो वहां से स्टार्ट होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो कंप्यूटर के अंदर जब भी आप पावर बटन दबाते हो तो बायोस से हमेशा स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि वो एंट्री पॉइंट है। बायोस में आने के बाद फिर वो ओएस को लोड करता है रैम के अंदर, फिर ओएस के अंदर लोड होने के बाद, रैम के अंदर लोड होने के बाद फिर आप यूजर इंटरफेस देख पाते हो। सो इसके लिए रैम का कुछ पार्ट रोम के लिए रिजर्व होता है। आई होप योर डाउट इज क्लियर। Yes, sir. So मतलब ROM में वो सब होता है ना that we see many a times in our Android phones, जैसे कि package installer and then all those kind of stuff. रैम But के that अंदर is by default in रैम के अंदर या ROM के अंदर sir. नहीं नहीं, ROM वो के जो अंदर। आप बोल रहे हो पैकेज इंस्टॉलर वो सब जो बोल रहे हो ना, नहीं एंड्रॉइड का नहीं। रोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ना, बायोस, मोबाइल के अंदर जो बायोस है वही रहेगा। ये जो आप बोल रहे हो ना पैकेज इंस्टॉलर या दूसरे जो है वो सारे के सारे ओएस के अंदर होंगे, वो रोम के अंदर नहीं आएगा। रोम के अंदर जो आपकी पावर, जैसे मैं वॉल्यूम अप डाउन करता हूँ, उसकी फंक्शनैलिटी इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं कर सकते हो आप। पावर ऑन ऑफ करने की जो बटन है उसकी फंक्शनैलिटी आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो ये जो इनपुट आउटपुट लेने के लिए, बेसिक इनपुट आउटपुट लेने के लिए जो प्री डिफाइंड बटन मेरे पास है, अभी मान लो ना अगर आप बायोस को चेंज कर पाते तो हो सकता है किसी ने पावर ऑन ऑफ को चेंज करके वहां पे वॉल्यूम का बटन लगा दिया। ऐसा पॉसिबल है कि मोबाइल के अंदर? इज इट पॉसिबल? No. No, sir. तो कुछ चीजों को बिना छेड़छाड़ के रखना ही पड़ेगा आपको, वरना किसी ने गड़बड़ कर दिया तो आप सिस्टम के अंदर जा ही नहीं पाओगे। बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं मोबाइल को पावर ऑन दबाने पे अगर उस मोबाइल मेरा स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो फिर मेरा मोबाइल किस काम का? तो कुछ चीजों को पावर, जो स्विच ऑन की बटन है उसको स्विच ऑन की बटन को डेडिकेटेड मुझे रखना ही पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई द बायोस कम इनटू पिक्चर। और बायोस जो है वो जानबूझ के उन बटन्स को दिया जाता है जिनका काम पावर ऑन, पावर ऑफ और बाकी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी के लिए यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, या सो वेयर वाज आई, किधर थे हम लोग टॉपिक पे? ऐसा भुला देना सर ये जो आप अभी नोट बना रहे हो ये शेयर हो सकता है क्या? शेयर हो सकता है, बट मैं आज का शेयर नहीं करूंगा क्योंकि एक जनरल ओवरव्यू है। जब मैं एक्चुअल टॉपिक सिखाना चालू करूंगा तब से शेयर करना चालू करूंगा। ओके सर कर दीजिए ना ये भी। Okay, sir. ये भी कर दूं? ये बहुत गंदा सा लिखा है मैंने, कुछ भी लिखा है। हाँ चलेगा? चलेगा सर, ये हम ऐसा अनऑफिशियली वे में ले लेंगे। ओके ठीक है, चलेगा। ओके सो या सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, टाइम है ना मेरे पास, मेरा लैब भी है, मैं थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा इधर उधर चले गए थे हम लोग। विल दैट बी ओके? यस सर। क्या आपको जाना है? यस सर। सर 4:30 तक है लेक्चर, ओके ओके अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। ओके। नहीं बट इन्होंने लैब, जनरली लैब थोड़ा आराम से होना चाहिए क्योंकि लैब के लिए अभी तक कंटेंट रेडी नहीं है ना, थियरी पहले कवर होना चाहिए। ओके तो सर। मेरे ख्याल से 2 वीक के बाद sir. आपका एक्चुअल प्रैक्टिकल चालू होगा। Yes, Sir, sir. By practical- the next week, ma'am told that they would start it. Yeah, so that is how the tentative timetable is, but I'm pretty much sure after 2 week only you can start with the practical for every subject. It is not possible that within 1 week उतना content हो जाए कि आप practical start कर सको। So at least 2 week तो जाता ही जाता है। Yeah, so what I was teaching, अगर आप कोई भी कंप्यूटर को अगर आप ओपन करते हो, there is something which is called as processor that you have. Everybody agrees? Yes, sir. Yes, sir. Then you have something for storage which is called as memory. ये होता है। उसके बाद एक important component होता है, वो क्या है? क्या बच गया? It is the keyboard and monitor, जिसको हम input output device बोल सकते हैं। Input. बराबर ना? Yes, sir. So मेरे पास एक इनपुट आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। उस इनपुट आउटपुट डिवाइस से मैं क्या कर सकता हूँ? प्रोसेसर को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ या प्रोसेसर से जो भी रिप्लाई होगा वो मैं डिवाइस पे देख सकता हूँ।
और प्रोसेसर क्या करेगा, वो मेमोरी में जाएगा, चेक करेगा कि वो क्या वो डेटा अवेलेबल है। अगर वो डेटा अवेलेबल है तो वो ला करके इनपुट आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करेगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज हाउ Yes, sir. द इंटरनल ऑफ कंप्यूटर लुक लाइक। ओके, सो note down this particular diagram is pretty much important. Okay, ये हर जगह काम में आने वाला है. If anybody asks you what is the architecture of a computer, computer has three major components. First one is the processor, then we have memory, then we have I/O devices. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So this processor, okay, this processor again further classified or divided into two different parts. इसके अंदर दो पार्ट होता है. पहले पार्ट को बोला जाता है ALU and दूसरे पार्ट को बोला जाता है CU. Any wild guess what is the full form of ALU can be? Arithmetic logic operator. Arithmetic and logic. Operator कैसे? Operator O से होता है. U is Unit. unit. Very good. So it is arithmetic and logical unit. And what does CU stand for? Control unit. Control unit. Very good. So ये दो कंपोनेंट होते हैं आपके प्रोसेसर के. So कोई भी प्रोसेसर के अंदर आपको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी मिलेगा और उसके अंदर कंट्रोल यूनिट भी होता है. So what is arithmetic logic unit will do? Any guess? क्या कर सकता है ये? Sir, mathematical calculations. Yeah. So arithmetic operations कर सकता है. What is arithmetic operations? Arithmetic operations such as plus, subtraction, multiplication, Division. then we have something called division, etc., etc. What is logical? Mod, yeah, good. What is logical operation? And Or NAND. or, nor, All the NAND, gates. etc., etc. XOR. Yeah. So what is the use? मेरे को सिर्फ इतना बता दो, लॉजिकल गेट का कुछ यूज है क्या? कैसे टाइम पास में पढ़ा है? है सर, यूज है ना. क्या है यूज, क्या है? अगर सिग्नल्स का किसी बेसिकली. हाँ. किसके क्या यूज है? Basically helps creates the instructions for the like when we put an input, like how will that affect the output? Yeah, it does affect the output, but in what sense? I'm not getting the example properly. So एक simple idea बता देता हूँ मैं आपको. There is a software which is called as a Nuke software. Nuke software क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके रैम को या आपकी मेमोरी को कंप्लीट जीरो कर देता है. ओके, सो जो भी आपकी मेमोरी में जो भी डेटा होगा, मान लो अगर आपको आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर अगर आपको बेचना हो, ओके, सो अगर जब आप बेचते हो तो वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट आप मार देते हो, जनरली क्विक फॉर्मेट कर देते हो. तो क्या क्विक फॉर्मेट मारने के बाद भी आप रिकवर कर सकते हो डेटा? कैन यू डू दैट आफ्टर फॉर्मेटिंग द डिवाइस? दो टाइप्स होते हैं. यस. So जो normal format करते हो, that format it formats a table which is called as a fact table, which is file allocation table. यानी कौन सी फाइल किस लोकेशन पे उस पर्टिकुलर टेबल को डिलीट करता है, ना कि डेटा को डिलीट करता है. सो डेटा उधर ही प्रेजेंट होता है. समझ में आपको? Yes, sir. Yes, sir. सो न्यूक सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो जाएगा और हर बिट को जो 1 होगा उसको 0 बना देगा. यानी कंप्लीट जो आपका मेमोरी है वो 0 0 0 0 पूरी मेमोरी आपकी 0 हो जाएगी. सो इन ऑर्डर टू डू दैट, 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एंड गेट किसी को पता है क्या होता है? व्हाट इज एंड गेट? ए और बी अगर मेरे पास है तो 0 0 0 1 सॉरी 1 1 एंड 0 1 0 1. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस ए एंड बी? What is the output? 0 0 is 0, 0 1 is 0 0 0 1 0 1, 0 1 and 0 1. is 0 and the last one is 0 1 1 1. Okay, so if you look closely, अगर मेरा इनपुट जो है, एक इनपुट अगर मैंने 0 रखा और दूसरा इनपुट कुछ भी रहने दो, मेरा आउटपुट क्या आएगा एंड गेट का? 0. यानी अगर मैं न्यूक सॉफ्टवेयर में मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जितने भी मेरे इनपुट है उसको मैं क्या करूँगा, एंड कर दूंगा 0 0 के साथ. 0 0 के साथ एंड करते क्या हो जाएगा, मेरा पूरा डेटा क्या हो जाएगा? 0 0 0 0. जहाँ तक मैं उसको एंड करूँगा पूरा का पूरा डेटा मेरा 0 हो जाएगा. सो दीज गेट्स डू हैव प्रैक्टिकल यूजेस. ऐसा नहीं कि इसका कुछ यूज़ नहीं है. दीज गेट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं है, और भी बहुत सारे. यानी अगर आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है या एडिशन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो भी आपको गेट्स यूज़ करना पड़ेगा. बिना गेट्स के आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो.
Is that clear? Yes, sir. तो ये क्या है हम देखेंगे और डिटेल में देखेंगे आगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली बोलने का तात्पर्य ये है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है आपका, इट बेसिकली परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस द लॉजिकल ऑपरेशन. फाइन, इज दैट क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. Yeah. Then we have something called as control unit. What is control unit? What is control unit? Controls the operations. It controls the It controls the no. It doesn't control anything. It sends a control signal. ये control signal send करेगा. Okay. I'll just explain the analogy. इसका एक example बताता हूँ. अगर आपके पास किसी ने आपको गर्म चाय का प्याला दे दिया, आप क्या करोगे? फौरन हाथ हटा लोगे? या? हाँ सर. So that is our response which is sent by. ये response किसने भेजा है आपको? आपके brain ने through neuron. जी सर. बराबर. सिमिलरली कंप्यूटर को कौन बताएगा कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई. सो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल के दे करके बताएगा कि अब तुझको ऐड करना है, अब तुझको मल्टीप्लाई करना है, अब तुझ उसको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बट ये कब करना है ये बताने के लिए कंट्रोल यूनिट होता है. जैसे मुझे पता है कि अगर गर्म चीज है तो मुझे हाथ हटा लेना चाहिए, लेकिन ये मेरे को डायरेक्ट मेरा दिमाग करेगा. सिमिलरली ALU को पता है उसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, ऐड करना है, और करना है, एक्सॉल्व करना है, लेकिन कब करना है ये बताने के लिए कंट्रोल यूनिट चाहिए. इज दैट क्लियर? Okay, sir. So control unit, how it tells? By releasing the control signal. Control signal release करके वो बोल देगा ये अब तुमको एडिशन करना है, अब तुमको सब्ट्रैक्शन करना है, अब तुमको डिवीजन करना है, तो जाके ALU डिवीजन करेगा, तो जाके ALU सब्ट्रैक्शन करेगा, तो जाके ALU आपका मल्टीप्लिकेशन करेगा. Is that clear? तो सर कैन वी से कि वो ALU को कंट्रोल करता है? Exactly. It controls ALU. And how it does control ALU? By sending the control signals. So if you give a one line definition, control unit is nothing but it is a part of processor which sends control signals in order to control the arithmetic logic unit. Is that clear? Yes. Fine. Can you repeat? Okay. So control unit is a part of processor. It is a part of processor. Yes, sir. Which sends the control signal. Yes. Which sends the control signal for controlling the operation to be performed by arithmetic and logic unit. I hope my handwriting is pretty much readable. Yes, sir. Okay, clear है यहाँ तक? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. Okay. थोड़ा नीचे जाता हूँ मैं. सो अगर आप कंप्यूटर में अगर आपने देखा तो आपने क्या देखा अब तक कि हमारा प्रोसेसर जो कि है दो पार्ट, एक पार्ट को हम ALU बोला जाता है और दूसरे पार्ट को कंट्रोल यूनिट बोला जाता है. फिर हमारे पास मेमोरी होती है. ओके, मेमोरी के अंदर क्या स्टोर करते हैं हम लोग? एनी गेस व्हाट डज मेमोरी होल्ड्स? डेटा. नेचुरली यही आंसर आता है सबका, डेटा होता है, लेकिन ये सही नहीं है. हाँ डेटा होता है बट उसके अलावा कुछ और भी होता है. What is the other thing that you have in memory? दो चीज होती है. The ये याद action that have to be performed. Sorry? The action that have to be performed. The action that has to be performed. And what is that? What it can be? Yes, that is pretty much you are saying, but it has a technical name for it. वो क्या है? Functions. Algorithms. Algorithm से भी ऊपर जाओ. Functions को combine करते तो क्या बनता है? Codes basically. Program. Operating system. Program के collection को क्या बोलते हैं? Collection of programs. Commands. No, command is also. No, command is if you combine. Yeah, performance. You can call it as a software. You can call it as an application. Right? Huh? Yes, sir. So कोई भी मेमोरी के अंदर आपको क्या मिलेगा? Either you can get data. The second thing that you can get is application. And you can also refer it as program. So कोई भी मेमोरी के अंदर, कोई भी दुनिया की कोई भी मेमोरी. Yes, any doubt?
सर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल्ड होता है ना? तो वो एप्लीकेशन ही होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन। यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही है ना। यस सर। या सो या कोई भी मेमोरी, दुनिया की कोई भी मेमोरी अगर आप ले लो, उसके अंदर दो ही चीज़ आप स्टोर कर सकते हो, क्या? डेटा, और दूसरा क्या? एप्लीकेशन। याद रहेगा? Yes, sir. Please Yes, note sir. it down Yes, sir. somewhere. It is one of the most important point. In any memory, you can store only two things. One is data and other is application. Fine. जी sir. Yes, sir. Example. What is WhatsApp? Application. Application. What is the data that you have in WhatsApp? Which is the text? Is it a data or The is it text, an the application? voice messages, Data. all that video, Data. media. So आपके मोबाइल के अंदर क्या रहेगा? आपके मोबाइल के अंदर जो आपका हार्ड डिस्क है, या मोबाइल के अंदर जो आपकी मेमोरी है, उसके अंदर आप क्या स्टोर करते हो? व्हाट्सएप स्टोर करते हो, प्लस उसका डेटा स्टोर करते हो। अगर आप MX प्लेयर यूज करते हो, MX प्लेयर क्या है? एक एप्लीकेशन है। मूवी जो आप स्टोर कर रहे हो वो क्या है? डेटा है, राइट? Yes, sir. Right? Yes, sir. Instagram is an application, and the data in Instagram is the photo that you store. Correct? Yes, sir. Yes, sir. So अगर आप मोबाइल देख लो, अगर आप लैपटॉप देख लो, अगर आपका डेस्कटॉप है, आप कोई भी चीज़ अगर आप देखो, तो दो ही चीज़ होगी, उसके अंदर एप्लीकेशन होगा या तो डेटा होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और ये एप्लीकेशन और डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा मेमोरी में? This application and data is generally stored in which format? Stored in Binary. Binary format, sir. which is either 0 or 1. 1. Is that clear? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. Yeah. Yes, so, sir. So we have the arithmetic logic unit, we have the control unit, we have the memory. Then we have something which is called as IO devices. Barabar? Yes, sir. Yeah. Now I'll just explain the distribution of the module. The first module, okay, I'll go back to the syllabus, okay, module number 1. It generally teaches you about the computer organization and architecture, okay. So what is computer organization and architecture? I'll quickly go down. I'll just write down. Module number 1 jo hai, it just give you the overview of computer organization and architecture. ओके सो ये आइडिया देता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं। इसके अंदर दो टाइप आता है आर्किटेक्चर में। वन इज कॉल्ड एज अ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ओके। वॉन न्यूमैन इज अ पर्सन हु इज आल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर, ओके। एंड देयर इज अनदर आर्किटेक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज अ हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ओके। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जनरली यूज किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, और ये जनरली यूज किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर के लिए। सुना है माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आप लोगों ने? हर्ड अबाउट माइक्रो कंट्रोलर? Yes, sir. Nice, sir. Yes, sir. माइक्रो कंट्रोलर जनरली जो डेडिकेटेड काम करता है, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन, वो कपड़ा ही धो सकती है और कुछ काम नहीं कर सकती, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए आपको एक कंप्यूटिंग प्रोसेसर लगेगा, और उस प्रोसेसर को हम माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। जो एक डेडिकेटेड काम कर सकता है उसको माइक्रो कंट्रोलर बोला जाता है, और जो मल्टीपल टास्क कर So सकता है उसको basically, our control that we have, na, like a remote or an AC ka remote, Exactly, whatever, that is exactly. also kind of micro. yeah so that is microcontroller because it has a dedicated task. उसका एक डेडिकेटेड टास्क है, right? Yes, sir. Yeah, so the first module deals with the different types of architecture that we have for making a computer. Second module के अंदर आप जब जाओगे तो सबसे पहले आपको The old, arithmetic and the logic. ancient ones. Sorry? I was asking, by any luck, are we gonna study the processors like the 8085 or 8088, something like Yes, that? it is there. It is there in the first module itself, which is 8086 you have, but it has a very important, very small role into it. इतना ज़्यादा role नहीं है. But at the backdrop of COA के backdrop में आपको 8086 रखना पड़ेगा समझने के लिए. Okay, so it is not there in the syllabus actually, but at the back end you need to ensure कि 8086 simultaneously चलता रहे. वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको, आप उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. Then you have something which is called as ALU. ALU आपको basically बताएगा कि how do you perform addition operation. So उसके लिए कुछ algorithm है. Then subtraction कैसे होता है. अगर आप subtraction जो है कंप्यूटर के अंदर, that is generally not done.
by a subtractor circuit. There is a concept which is being used जो आप use करके direct adder के through कर सकते हो. So any concept, anything that you have heard how you can do that? यानी बिना subtractor circuit के through adder circuit you can perform subtraction. कैसे कर सकते हैं? Any idea? Heard about something called as 2's complement? Yes, sir. No, sir. Yeah. So there is a concept called as 2's complement जो हम Something related देखेंगे. to the binary numbers. Yeah. We add Then- one and then it automatically gets subtracted because of the zeros and ones. Yeah. So ये 2's complement use करने की वजह से आपको एक सर्किट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. And if you reduce a circuit, naturally you are going to reduce the overall cost of a computer. Okay. So in this ALU, you will be learning how to perform addition, how to perform subtraction, how to perform multiplication. Then there is how to store floating point numbers. So for that we have IEEE 754 format. ये क्या है ये हम देखेंगे. Floating point को कैसे store करना है कंप्यूटर के अंदर. That will be same. Then comes module number 3, which is the control unit. Okay. So अगर आप देख रहे हो flow, the flow is exactly the same. So ये module number 2 हो गया आपका. This is module number 3. This is module number 4. This is module number 5. So that is how the flow of the computer is. That is how the flow of the computer is. Is that clear? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So control Yes, unit sir. के अंदर there are generally two ways of making control unit. One is called as a hardwired control unit. Okay, hardwired control unit. Then we have something called as a microprogram control unit. Okay, microprogram control unit होता है उसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन होगा. There is a concept of Wilkes designing जो कि World War II के टाइम पे बनाया गया था. कंप्यूटर से पहले ही बना दिया गया था कंट्रोल यूनिट को. सो वो सब चीज़ें इसमें थोड़ा डिस्कशन है. देन 5th मॉड्यूल के अंदर आएगा मेमोरी. मेमोरी के अंदर यू जनरली हैव द हायरार्की ऑफ द मेमोरी, टाइप्स ऑफ द मेमोरी. देन यू हैव रैम एंड रोम का टाइप्स. यू हैव टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी. ओके, सो देयर आर L1, L2, L3 कैश मेमोरी. ओके, so memory segmentation, there is a concept of memory segmentation that you will be having. Then 5th module mein you will be having input output devices. In input output devices you have a special chip which is called as 8255 PPI, which is 8255 peripheral programmable interface. ये chip के ऊपर discussion होगा. Then there is another concept called as DMA. DMA stand for direct memory access. Direct memory access का मतलब अगर आपने देखा होगा प्रोसेसर, यहाँ पे आपकी मेमोरी है और यहाँ पे IO डिवाइसेस है. तो हम क्या करते थे, पहले प्रोसेसर के पास जाते थे, प्रोसेसर क्या करता था, वो मेमोरी के पास जाता था. तो इसमें टाइम लगेगा. सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अगर पता है कि उसको क्या डेटा चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू प्रोसेसर दे कैन डायरेक्टली एक्सेस द डेटा फ्रॉम द मेमोरी. सो अगर आपको ज़्यादा बल्क में डेटा ट्रांसफर करना है, यू कैन यूज दिस कंसेप्ट एंड दैट कंसेप्ट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So 5th module deals with the input output devices और दूसरे input devices क्या है, output devices क्या है. जनरल टॉपिक है थोड़ा, उतना कुछ बड़ी टॉपिक नहीं है उसके अंदर. Then the 6th module is regarding the parallel computing. So parallel computing मतलब parallelly अगर compute करना है आपको डेटा, so उसके लिए there is a concept of called as pipelining. पाइपलाइनिंग जनरली जो कंसेप्ट है वो आपके कोर्स के अंदर यूज होता है. यानी i3 प्रोसेसर, जितने भी मॉडर्न प्रोसेसर उसके अंदर कोर्स का जो कंसेप्ट है वो पाइपलाइनिंग के थ्रू आया है. सो वो कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इसके लिए हेल्प लेना पड़ेगा अगेन 8086 का. इसके लिए भी हेल्प हमें 8086 प्रोसेसर का लेना पड़ेगा. इसके लिए माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के लिए भी 8086 लेना पड़ेगा. सो हर जगह बैकड्रॉप में यू विल बी हैविंग 8086, बट वो कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir, interrupts भी होंगे हमें? इंटरप्ट्स भी रहेंगे. इंटरप्ट्स क्या है, मतलब अगर कोई एक्सटर्नल इवेंट अगर होता है तो आपका नॉर्मल जो फ्लो है उसको हॉल्ट करके पहले इंटरप्ट को सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा. उसके बाद फिर आपके नॉर्मल प्रोग्राम को आपको जस्ट लाइक जैसे अगर आप जैसे कंप्यूटर के अंदर आप यूएसबी लगाते हो तो अचानक से एक पॉपअप आता है, बराबर ना, कि यूएसबी हैज बीन डिटेक्टेड. सो दैट इज अ इंटरप्ट, दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरप्ट. ओके, सो वो क्या है वो हम देखेंगे. देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फ्लिंस क्लासिफिकेशन. फ्लिंस क्लासिफिकेशन यानी उसने कंप्यूटर को 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया था. वन इज कॉल्ड एज SISD, अदर इज कॉल्ड एज SIMD, देन वी हैव MISD, देन वी हैव MIMD एंड सो ऑन. तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के पैरेलल कंप्यूटर्स है जो उन्होंने बनाया, जहाँ पे कंट्रोल यूनिट को डिवाइड किया है, कहीं पे मेमोरी को डिवाइड किया है, कहीं पे प्रोसेसर को डिवाइड किया है. कैसे डिवाइड किया है, क्या किया है, वो हम आगे देखेंगे. सो दैट इज मॉड्यूल नंबर 6. दैट इज हाउ द कंप्लीट ओवरऑल
flow of your computer organization and architecture looks like. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Anybody has any doubts so far? No, sir. Nice. Okay. The thing is, basically, I need to go Sir? to the meeting. There is a meeting which is there. Yes. Sir, what will be our lab sessions about? The lab session will be basically it will have two different components. पहला तो जो हैगा आपका the design of logical circuits, जिसके अंदर आपको बूथ एल्गोरिथम के लिए सर्किट डिज़ाइन करने पड़ेंगे, एडिशन के लिए एडर के लिए सर्किट, हाफ एडर, फुल एडर, कैरी लुक अहेड एडर के लिए सर्किट बनाने पड़ेंगे आपको, लॉजिक सर्किट्स है, और उसके लिए सिमुलेटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, प्लस आपको असेंबलर के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज टाजम विच इज़ द टर्बो असेंबलर, जो कि आपको 8086 के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी और उसको यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं. So it is of two different parts. We have a virtual thing. Sorry. उसका भी मतलब प्रॉपर होगा. 8086 का भी we'll get the microprocessor as a virtual lab का वो component. Yes, you can. Yes. There is a simulator software which is a TASM, or you can call it as a MASM. Okay, ये दो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो और उस सॉफ्टवेयर को यूज करके you can write down the program, और उस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपको एक्चुअली उस हार्डवेयर के अंदर कौन सा रजिस्टर में क्या डेटा स्टोर है और आपको आउटपुट क्या मिलेगा वो आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो थ्रू अ हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर. सो बेसिकली वो एक्चुअली हार्डवेयर होता है, बट वो कंपोनेंट मतलब 40 साल पुराना है वो कंपोनेंट. सो अभी वो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन वो समझने के लिए, बाकी सारे प्रोसेसर को समझने के लिए आपको 8086 को समझना कंपलसरी. इट इज़ जस्ट लाइक अगर आपको स्क्वायर रूट समझना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन समझना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एडिशन समझना पड़ेगा. सो अगर आप एडिशन समझ लेते हो आप मैथमेटिक्स का आधी जंग जीत लेते हो. सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट. अगर आपने 8086 समझ लिया, आप i3 समझ सकते हो, आप Pentium समझ सकते हो, i5 समझ सकते हो, i7 समझ सकते हो. यू कैन लर्न एवरी अदर थिंग बिकॉज दैट इज द मेन बेसिक्स ऑफ एवरी माइक्रोप्रोसेसर, एवरी मॉडर्न माइक्रोप्रोसेसर दैट वी हैव राइट नाउ. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Okay, can I leave? I need to go for a meeting. Is that okay? Yes. Sure, sir. Okay, fine. We'll meet. Thank you, sir. I think attendance is also Thank you, sir.